السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی. میں ہوں سید مصور علی زنجانی. ماہ اکتوبر کی بات کی جائے تو ماہ اکتوبر ربیع الاول کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور ماہ اکتوبر ماہ ربیع الاول کی برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کے فضائل اور ان کی سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ منایا جائے گا. اور نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ اہل اسلام میں ماہ ربیع الاول کی برکتوں کے ساتھ ہماری یہ دعائیں ہیں کہ جو بھی ظلم، مصائب، پریشانیاں عالم اسلام کے اوپر ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو کہ پاکستان میں موجودہ سیلاب کی وجہ سے تباہی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، یا ایسے تمام احباب جو کہ کسی بھی طور پہ اپنے معاشی مشکلات، پریشانیاں، یا ہماری ایسی بہنیں جو کہ اپنے رشتے یا شادی یا خان کی مصائب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام تر حاجات، تمام تر پریشانیاں، تمام تر مشکلات سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور ان کے وسیلہ سے دور فرمائے، اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک رحمت ہے، اسی طرح آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت شامل ہو، اور آپ لوگوں کے تمام تر مسائل، مشکلات دور ہوں. آپ اپنی جگہ پہ جس پریشانی سے گزر رہے ہیں، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر طرح کی مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں کے اندر اتنا ہمت، حوصلہ عطا کرے کہ آپ لوگ اپنے مشکلات کو، پریشانیوں کو، اپنی ایسی چیزیں جو کہ آپ کو بلا وجہ ذہنی طور پر فرسٹریشن یا ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان سے آپ لوگوں کو لڑنے کی ہمت، حوصلہ دے، اور جلد آپ لوگوں کی زندگیوں سے یہ مسائل، مشکلات دور ہوں. اس پورے مہینے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ماہ اکتوبر میں، جیسے کہ آپ لوگوں کو علم تھا کہ میرا وزٹ ہوتا ہے کراچی کا، لیکن میں نہیں آ سکا. ایک تو ہماری زنجانی جنتری 2023 کی تیاری کی وجہ سے، کیونکہ عملی بہت سارا کام زنجانی جنتری 2023 کا پینڈنگ تھا، جس وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرے والد اقدس ہیں حضرت سید انتظار حسین زنجانی، وہ کیونکہ لاہور میں مقیم نہیں ہے، وہ ابھی موجود ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ میں. تو اس اعتبار سے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ایسی تھیں جو کہ لاہور میں میرے اوپر تھیں، جس وجہ سے میں آؤٹ آف اسٹیشن کا وزٹ اپنا ڈیو کیا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے راولپنڈی میں تو ملاقات ہوگی، جو کہ میرا آن روٹین شیڈول پروگرام ہوتا ہے. پچھلے مہینے میں راولپنڈی نہیں آ سکا کیونکہ میرا انٹرنیشنل ٹور تھا، لیکن انشاءاللہ ماہ اکتوبر میں راولپنڈی میں موجود ہوں گا. 15، 16، 17 3 دنوں کے لیے آپ لوگ مجھے مل سکیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد زنجانی جنتری، 12 امامیہ جنتری اور البیرونی تقویم انشاءاللہ ماہ اکتوبر کے ہی اختتام سے پہلے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، مارکیٹس میں موجود ہوں گی. آپ لوگ اس کا مطالعہ کر سکیں گے، 2023 کے اپنے حالات کو دیکھ سکیں گے. اور جیسے ہی وہ جنتری کی مصروفیات کم ہوں گی، زنجانی ٹی وی کے اوپر بھی آپ لوگوں کو 2023 کے بارے میں اپنے تمام تر شیڈولز، حالات، اور اگلے سال کے آنے والے گرہن کے اعتبار سے چیزیں، اگلے سال کے آنے والی الیکشن کے لحاظ سے معاملات، اور اگلے سال پول کے پاکستان کے اعتبار سے جو بھی مین پروڈکشنز ہیں، وہ تمام تر آپ لوگوں کو زنجانی ٹی وی کے اوپر بھی انشاءاللہ ضرور دیکھنے کو ملیں گی. ماہ اکتوبر کی بات کریں تو کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشیوں کا، خیر و برکت کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے ہماری جو زنجانی انٹرنیشنل کارپوریشن کی جو بہت ساری پروڈکٹس ہیں، جن میں ہمارے پاس دیگر پروڈکٹس کے علاوہ ایک بہت اچھی کیپ ہے جس کے اوپر آپ کو نالانے رسول جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عکس بھی نظر آئے گا. تو ایسے تمام احباب جو کہ اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو وہ حافظ سید محسن علی زنجانی سے رابطہ کر کے اس کیپ کو منگوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نالین ہے تو آپ اس کو اپنے سر کے اوپر سجائیں گے تو مزید اور زیادہ خوبصورتی بڑھ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں، ہمارے پاس اس پورے ہفتے کی بہت زیادہ اہم ایونٹس ہیں، پریڈکشنز ہیں، اور اسی پریڈکشنز اور ایونٹس کے اعتبار سے اگر ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمارے پاس اس پورے ہی مہینے میں، ماہ اکتوبر میں، ہمارے پاس ایک تو مین چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کی آمد کا جشن کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی جو سب سے خوبصورت چیز مزید اور یہ ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی، کیونکہ ریسنٹلی پچھلے ہی جو اسلامی تواریخ گزری ہیں ان میں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، اور یہ عالم اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی 1 ہجری کو. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی مہینے میں میلاد مسعود آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو کہ میرے چھٹے امام ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہمارے پاس اسی مہینے میں
बहुत सारी दीगर उर्स की रूहानी तकारीब हैं, जिनमें मेरे दादा पीर सैयद नाज़र हुसैन ज़ंजानी का भी उर्स होगा इंशाल्लाह 9 और 10 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा, जो कि उनका मज़ार अक़दस है रावी के किनारे, वहाँ पे ये तकारीब होंगी। आप लोग भी दुआ में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा इस पूरे महीने में जो शहादत है बेसिकली इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की 370 हिजरी में, तो ये शहादत का भी दिन है इमाम हसन अस्करी का। इस एतबार से ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं। आमद का महीना है, जश्न का महीना है, और इसके साथ साथ जहाँ पे जश्न हो वहीं पे खुशियों के साथ साथ इंसान को कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी का अहाता भी करना चाहिए कि उसके आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें उसको कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसकी नेमतों में मज़ीद इजाफा हो और उसके मसाइल मुश्किलात परेशानियों में कमी हो, उसका हिम्मत हौसला कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इंशाल्लाह हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को कवर करते हैं, आप लोगों के तमाम ज़ोडिक साइंस को देखते हैं कि आप लोगों के ज़ोडिक साइंस कैसे रहने वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग कवर करेंगे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक, क्योंकि ऑलरेडी ज़ोडिक साइन मंथली तौर के ऊपर टैरो रीडिंग्स का प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम लोग इसको कवर करेंगे ज़ोडिक साइन के मुताबिक आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक आप लोग अपने इस पूरे महीने को कैसे गुजार सकते हैं, कौन सी तवारीख एहतियात कौन है और उसमें आप लोग कौन सी एहतियात दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आपका हाकिम सितारा मरीख यकम से लेकर 16 अक्टूबर तक दूसरे खाने माल में रहते हुए माली लेन देन बिलखसूस शराकत शरीक हयात के नसीब से माली वसाइल बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा आप लोगों का महीना 17 से लेकर इख्तिताम माह तक अगर देखा जाए तो तीसरे बैतुल अकरबा में मौजूदगी की वजह से तजदीद मरासम रह सकेंगे। आप लोगों के दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश बढ़ती हुई नज़र आती है, उसमें काफ़ी हद तक तेज़ी भी आ सकेगी। 18-19 अक्टूबर को मरीख शम्स तसलीस होने की वजह से खुद एतमादी कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ावा और इसके सबब मसाइल मुश्किलात का हल निकालने में आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह एक्टिव मुतहर्रिक रहेंगे। सेहत जिस्मानी में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। 19-20 अक्टूबर को मरीख ज़ोहरा तसलीस होने की वजह से सेहतमंद इक़दामात, उसके अच्छे नताइज, आप लोगों की काफ़ी हद तक चीज़ें तख्लीक़ात और मुस्बत सोच की वजह से इंशाल्लाह बेहतर तौर के ऊपर फलती फूलती हुई नज़र आएंगी। दरपेश मुश्किलात का बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग हल निकाल पाएंगे। 25 अक्टूबर को 7वें लगने वाला जो शमसी ग्रहण है, क्योंकि ये महीना ग्रहण का भी है, तो इस एतबार से शमसी ग्रहण आप लोगों के ज़ाहिर चूँकि 7वें घर में लग रहा है, आप लोग अपनी शराकत शरीक हयात और अपने रवाबत जो कि शराकती तौर के ऊपर हैं उनमें ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग 2 रकत नमाज कसूफ़ अदा करेंगे और हस्ब तौफ़ीक सदका लाजमी तौर के ऊपर देंगे। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का हाकिम सितारा यकम से लेकर 18 अक्टूबर तक 5वें बैतुल औलाद हमरा शम्स होने के सबब तहतुल शवा यानी कि गरूब हालत में होगा, जिस वजह से हर तरह के फ़ैसले करने से पहले आप लोगों को सोच समझ लेना चाहिए, बुज़ुर्गों से मुशावरत कर लेनी चाहिए, दूसरों के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि बाद में किसी भी तौर के ऊपर पशेमानी परेशानी ना हो सके। 19 से लेकर इख्तिताम माह तक ज़ोहरा की छठे बैतुल मर्ज में मज़ीद कमज़ोर नशिस्त होने की वजह से आप लोगों को हर तरह के इक़दामात, हर तरह के मामलात ये पूरे महीने में सोच समझ के अंजाम देने चाहिए। और वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका दे रहे हैं वहीं पे आप लोगों को चाहिए कि जज्बाती फ़ैसलों से रुके रहें, जल्दबाजी से रुके रहें और मुखलिस अहबाब का तावन अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि आप लोग काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप लोगों का हाकिम जो कि खाने माल का है, आप लोगों का हाकिम सदारा खाने माल का अदालत यकम से लेकर 16 अक्टूबर तक स्पेशली मरीख की भी ताले में मौजूदगी होने की वजह से जल्दबाजी और गुस्से से आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि आप लोगों का हाकिम खाने माल का नो डाउट अपने शर्फी घर में रहने के बावजूद भी जब हालत रजत में होगा, जो कि यकम से लेकर 26 अक्टूबर तक का टाइम है, हालत रजत में होने की वजह से और तबीयत में तेज़ी, जल्दबाजी और एग्रेशन होने की वजह से आप लोग कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे कामों में शमूलियत की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट नज़र आते हैं जिसमें आप लोगों को बाद में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। तो कोशिश कीजिए कि माली तौर के ऊपर लेन देन में जहाँ पे एहतियात कर रहे हैं, लिखत पढ़त कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरह की इन्वेस्टमेंट से भी आप लोगों को भरपूर तौर के ऊपर रुकना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। और जो चीज़ माजी में आप लोग ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं उसी में ज़्यादा फोकस रहें, नए तजर्बात से रुक जाएं और नई पॉन्जी स्कीम्स में या ऐसी चीज़ों में जिनका आपको तजर्बा नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट से आप लोग रुके रहेंगे तो मामलात ज़िंदगी आपके पॉजिटिव रहेंगे।
اس کے علاوہ 14-15 اکتوبر کو زہرہ زحل تسلیس ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں فرشناسی، ایمانداری، مخلصانہ ڈپلومیسی اپناتے ہوئے بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے آپ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 19 اور 20 اکتوبر کو زہرہ مریخ تسلیس اگین بننے کی وجہ سے ایک اچھی پازیٹیو نظر ہے، جس وجہ سے کچھ صحت مند اقدامات رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا رجحان بڑھے گا، اور اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ جو دوسروں کی ایڈوائزز مل رہی ہیں، دوسروں کی جو فیورز ہیں، ان کو بہتر طور کے پر اویل کریں، یوٹیلائز کریں گے، تو تبھی فائدہ آپ کو زیادہ مل سکے گا۔ اس کے علاوہ اس پورے مہینے میں کیونکہ بیسیکلی 25 اکتوبر کو لگ رہا ہے شمسی گرہن، اور یہ شمسی گرہن آپ کے زائچوں کے چھٹے گھر میں ہے، گو کہ چھٹے گھر میں گرہن لگنا آپ لوگوں کو صحت جسمانی سے فائدہ دلا سکتا ہے، آپ لوگوں کی ملازمتی طور کے پر یا آپ لوگوں کے جو ظاہری طور کے پر حاسد ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کو فوقیت دلا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے حسب توفیق صدقہ کے علاوہ 2 رکعت نماز کسوف لازمی طور کے پر ادا کیجیے گا، تاکہ آپ لوگ ہر طرح کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جیمنائی برج جوزا۔ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ عطارد 1 سے لے کے 6 اکتوبر تک چوتھے وطد الارض میں رہتے ہوئے ابتدائی ماہ میں حالت رجت میں رہنے کے بعد 3 اکتوبر سے حالت استقامت میں آئے گا، تو خانگی زندگی، خاندانی مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ حل نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غلط فہمیوں کا خاتمہ ممکنات میں سے ہوگا، بلا وجہ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، کمیونیکیشن گیپ تھا، آپ جو چیز دوسروں کو کنونس کرنا چاہتے تھے، سمجھانا چاہ رہے تھے اور اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوگا۔ کاروباری معاہدے، معاملات تحریری طور کے پر طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ 27 سے لے کے 31 اکتوبر تک عطارد کی 5ویں بیت الاولاد میں نشست ہونا آپ لوگوں کے رومانوی زندگی میں درپیش مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا حل، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی پرابلمز تھیں وہ حل کرنے میں آپ لوگ بہت ایکٹیو متحرک ہوں گے۔ اولاد کے ساتھ آپ لوگوں کی اپنی کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اپنے تعلیم و تدریس کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ بہتری آ سکے گی۔ 12-13 اکتوبر کو عطارد مشتری مقابلہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو خود اعتمادی میں ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ خود اعتمادی میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، جس وجہ سے آپ لوگ جو کام کر رہے تھے اس میں سست روی آ جائے گی، یا جو چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ کی کیپیبلٹی ہے، بلا وجہ کام ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ ایک بیلنس قائم رکھیں تاکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہیں۔ اس کے علاوہ 23 اور 24 اکتوبر کو عطارد زحل تسدیس بننے کی وجہ سے، عطارد زحل تسلیس بننے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کیپیبلٹی بڑھے گی، آپ لوگوں کا ویژن بہتر ہوگا، سوچ بہتر ہوگی، آپ لوگوں کی اپروچ بہتر ہوگی، جس کے اکارڈنگلی آپ لوگ ایسے کام جو کہ بلا وجہ الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ انتشار کا شکار ہے، آپ لوگ چیزوں کو بہتر بنانے میں کافی حد تک ایکٹیو و متحرک ہوں گے، اور مسائل کا مثبت حل نکالنے میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ ایون اگر کہ کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے معاملات ہیں، یہاں پر دوسرے فریقین کے ساتھ مل بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس میں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ لیکن 25 اکتوبر کو 5ویں میں لگنے والا شمسی گرہن آپ کو اس چیز کی دوبارہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کی اولاد سے جڑی چیزیں، رومانوی محبت سے جڑی ہوئی چیزیں، کیونکہ گرہن کے منفی اثرات کی وجہ سے سینسٹیو ہوں گی، تو آپ لوگوں کو اس اعتبار سے صدقہ لازمی طور کے پر دینا ہے حسب توفیق۔ اور اس کے علاوہ دوران گرہن یا گرہن سے پہلے آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز کسوف بھی ادا کرنی ہے، تاکہ کسی بھی طور کے پر آپ لوگ مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں نہ پڑیں اور آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کینسر برج سرطان۔ برج سرطان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ چندرما قمر۔ اس پورے مہینے میں دیکھیں تو 1 اکتوبر اور اس کے علاوہ 28 اور 29 اکتوبر کو حبوتی برج میں کمزور پوزیشن پر رہے گا، جبکہ 5 اور 6 اکتوبر کو وبالی برج میں رہتے ہوئے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے مہینے کی ابتدا میں اور مہینے کے اختتام میں آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ کیونکہ ویک پوزیشن پہ ہے، اور پہلے ہفتے میں بھی اختتام پہ کیونکہ ویک پوزیشن پہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے زائچہ میں لگنے والا چوتھے میں بیسیکلی شمسی گرہن جو کہ 25 اکتوبر کو ہوگا، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے ابتدا اور اختتام دونوں ہی احتیاط کن ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس پورے مہینے کی پلاننگز آپ کے پاس موجود رہیں، اس پورے مہینے میں آپ لوگ زندگی میں جو پہلے سے چیزیں سیکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، پہلے کے تجربات کو شامل کریں، نئے تجربات کرنا، نئے لوگوں کے مشوروں کے عمل کرنا،
कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना, स्पेशली प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, सवारी में, या फिर घर की तमीर के एतबार से मामलात कुछ इस तरह के अंजाम दे देना जिसमें फ़ैसले कमज़ोर हों। तो कोशिश करें कि ये पूरा महीना आप लोगों के हर तरह के मामलात में बेहतरी के लिए मुशावरत ज़रूर रहे, बुज़ुर्गों के साथ, तजर्बाकार लोगों के साथ, मुखलिसीन के साथ, और अपने माजी के जो तजर्बात हैं उनको सामने रखते हुए चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे तो आप बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा पूरे महीने वक्फा से सदक़ात के अलावा, बिलखसूस जब ग्रहण लग रहा है उस दौरान आप लोगों ने सदका तो देना है, लेकिन 2 रकअत नमाज कसूफ़ भी अदा करनी है, जो कि आपको ग्रहण के मनफी असरात से इंशाल्लाह महफूज रखेगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे महीने में आप लोगों के लिए 12-13 अक्टूबर को शम्स ज़ुहल तस्लीस बनने की वजह से शराकती मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकते हैं। शरीक हयात की तरफ से फेवर्स मिल सकती हैं, उसकी अच्छी सोच की वजह से आप लोगों के बहुत सारे मसाइल, प्रॉब्लम्स कंट्रोल होते हुए नज़र आते हैं। आपका शरीक कार जो है आपको पर्सनली तौर के ऊपर बहुत सारी फेवर्स दिला सकता है जिसमें आपके मामलात ज़िंदगी पॉजिटिव रहें। इसके अलावा 18 और 19 अक्टूबर को शम्स मरीख तस्लीस होने की वजह से भी करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए अगला महीना आप लोगों के लिए ज़्यादा खूबसूरत होगा। इस महीने में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको कुछ अर्सा के लिए होल्ड कर लेना, नज़र सानी रखना, मुशावरत करना, ये ज़्यादा पॉजिटिव और बेहतर रहेगा। इस पूरे महीने में वक्फा से सदक़ात के अलावा आप लोगों ने ग्रहण के दौरान या उससे पहले 2 रकअत नमाज कसूफ़ लाजमी अदा करनी है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास लियो बुर्ज असद। आप लोगों को हाकिम सितारा शम्स 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक खाने माल में हमरा अतारद और ज़ोहरा होने के सबब अजीज़ व क़ारिब अहबाब और बहन भाइयों के साथ मिलकर किए जाने वाले काम में फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं, और मुमकिनात में से जो ऑलरेडी काम उनके साथ चल रहे हैं उनमें कुछ दरपेश मुश्किलात, परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ख़ास मकासद के तहत आप लोग दूसरों के साथ मिल के भी काम करने की ख्वाहिश का इजहार रखे हुए नज़र आते हैं। सफ़र करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला सफ़र साबित होगा। 18 अक्टूबर से लेके इख्तिताम माह शम्स की तीसरे बैतुल अक़रबा में मौजूदगी आप लोगों के लिए तजदीद मरासम के लिए बहुत खूबसूरत होगी। आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप दूसरों के साथ मिल के कर रहे थे उसमें आपकी इज़्ज़त और रुतबे में इजाफा हो सकेगा। तलीमी तौर के ऊपर जितने मामलात हैं उनमें चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल रहती हुई नज़र आती हैं। 12-13 अक्टूबर को शम्स ज़ुहल तस्लीस होने की वजह से सब्र इस्तिकामत आ सकेगा, तबीयत में ठहराव आता हुआ नज़र आता है, नज़्म और ज़ब्त रहती हुई नज़र आती है, और आप लोग किसी ख़ास मकासद के तहत बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सॉर्ट करने में भी कामयाब रह सकेंगे। 18-19 अक्टूबर को शम्स मरीख तस्लीस होने की वजह से आप लोग अपने मकासद का हसूल जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज में अचीव करते हुए नज़र आते हैं। दूसरों के साथ सेहतमंदाना मुकाबले में आप लोग शामिल रहते हुए नज़र आते हैं, जिस एतबार से आप लोगों की खुद एतमादी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ावा होगा और आप दरपेश मुश्किलात को सॉर्ट करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 23 और 24 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा किरान होने की वजह से दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश, और ऑलरेडी अगर काम कर रहे हैं तो उसमें फेवर्स आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है। शरीक हयात के साथ आप लोगों के रवाबत में खूबसूरती, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 अक्टूबर को लग रहा है शमसी ग्रहण, तो शमसी ग्रहण जो 25 अक्टूबर को लग रहा है आपके ज़ायशे के तीसरे घर में है, तो इस एतबार से आप लोगों को अपने अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो आपके ऊपर आयद होती हैं उनमें किसी भी तौर के ऊपर तख़ीर या डिले नहीं होना चाहिए, या उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप के लिए उनकी ज़ात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या उनके काम बिला वजह आप जानबूझ के कुछ डिले कर रहे हैं। इस एहसास से उनको बाहर निकालने की कोशिश करने के अलावा सदका लाजमी तौर के बढ़ते हैं, और दौरान ग्रहण 2 रकअत नमाज कसूफ़ लाजमी तौर के बर्दा करें ताकि ग्रहण के मनफी असरात से आप लोग महफूज रह सकें। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास विर्गो बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला आप लोगों का हाकिम सितारा अतारद 1 से लेकर 26 अक्टूबर तक ताले में इब्तदाई माह हालत रजत में रहने के बाद 3 अक्टूबर से मुस्तकीम होने की वजह से सोच में काफ़ी हद तक वसत आती हुई नज़र आती है। जहाँ पे वसत है वहीं पे कुछ ज़िंदगी में मुस्बत इक़दामात करते हुए नज़र आएंगे। तबीयत में आला ज़रफ़ी नज़र आती है, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। नित नए आइडियाज़, तख्लीक़ात और नए रुझानात की तरफ ज़िंदगी में काफ़ी हद तक माइल नज़र आएंगे।
इसके अलावा देखा जाए तो 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक दूसरे खाने माल में होने के सबब माली लेन देन में दरपेश मुश्किलात परेशानियों को हल करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। और इसके अलावा मुस्बत फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आती है, जो कि बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। इसके अलावा आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो 12-13 अक्टूबर को अतारत मुश्तरी मुकाबला होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने मरासम दूसरों के साथ खूबसूरत रखने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी फैसले कर रहे हैं उनमें नज़रसानी रहनी चाहिए। 23-24 अक्टूबर को अतारत ज़ोल तसलीस बनने की वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में संजीदगी इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने में बहुत महारत रखे हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिव अप्रोच नज़र आती है, जिसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को बड़ी बेहतर अंदाज में आप लोग सॉर्ट आउट कर सकेंगे। और इसके अलावा 27 से 28 अक्टूबर को आप लोगों के ज़ायचे में अतारत मरीख तसलीस बनने की वजह से टेक्निकलिटीज़ से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको आप लोग खूबसूरती के साथ सॉर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और ग्रहण जो लग रहा है आपके ज़ायचे में 25 अक्टूबर को लगने वाला जो ग्रहण है ये बेसिकली क्योंकि आपके खाने माल में लग रहा है तो माली तौर के ऊपर लेन देन में आप लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कर्ज देना कर्ज लेना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकअत नमाज कसूफ लाजमी तौर पर अदा करें और हस्ब तौफीक सदका ज़रूर दें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान आप लोगों का हाकिम सदारा ज़ोहरा यकम से लेके 18 अक्टूबर तक 12वें नहस घर में होने की वजह से बिला वजह के वहम वसवसे परेशानियां खदशात वक्त का ज़या और चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग एग्जैजरेट करते हुए नज़र आते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा मुखलिसीन के साथ मुशावरत रखें, हकीकत पसंदी के ऊपर आप लोग अपने आप को फोकस रखने की कोशिश करें। और जब तक चीज़ें आप लोगों के लिए रिकन्फर्म ना हो जाएँ तब तक हर चीज़ के ऊपर यकीन करना इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए देखा जाए तो 19 से लेकर 31 अक्टूबर तक ज़ोहरा की ताले में मौजूदगी सोच में वसअत आ सकेगी, तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी, आप लोग वहम वसवसों से बाहर निकलेंगे, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच होगी और चीज़ों में खूबसूरती पैदा करने के लिए आप लोग बड़े एक्टिव मुतहर्रिक होंगे। इसके अलावा ज़हनी सुकून भी आप लोगों के लिए मुयस्सर रहेगा। 14-15 अक्टूबर को देखें तो ज़ोहरा ज़ुहल तसलीस बनने की वजह से फ़र्शनासी, ईमानदारी, दूसरों के लिए मावनत पैदा करना, दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश रखना और डिप्लोमेसी अपनाते हुए बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये पूरे महीने में अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने के लिए 19-20 अक्टूबर ज़ोहरा मरीख तसलीस की नज़र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आप लोग काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काफ़ी हद तक अपने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को हैंडल करने में कामयाब रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है। सेहतमंद इक़दामात दूसरों के साथ बढ़ते हुए नज़र आएंगे और ख़ास मकासद के तहत आप लोग दूसरों के साथ मिल के काम करने की भी ख्वाहिश का इजहार रखेंगे। 23-24 अक्टूबर को ज़ोहरा शम्स किरान होने की वजह से काफ़ी हद तक मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। आपकी शख्सियत में मुस्बत पहलू उजागर रहते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी तबीयत और अपने अंदाज से दूसरों को अपनी तरफ मरूब करते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों की इज़्ज़त रुतबे में काफ़ी हद तक इजाफा मुमकिनात में से रह सकता है। 25 अक्टूबर को आप लोगों के ताले में यानी कि पहले घर में आपके जहन सोच में लगने वाला शमसी ग्रहण ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा वक्ती परेशानी का सबब लाएगा, लेकिन आप लोग इस मनफी जो ग्रहण के बद नज़री है उससे आप लोग महफूज रह सकते हैं अगर आप लोग हस्ब तौफीक सदका दें और 2 रकअत नमाज कसूफ अदा करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुश्किलात और कॉन्फिडेंस लेवल के लूज़ होने से आप लोग अपनी ज़ात को महफूज रख सकेंगे। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। आप लोगों का हाकिम सदा मरीख यकम से लेकर 16 अक्टूबर तक 7वें बैतुल ज़ौज में रहते हुए जल्दबाजी, जज्बाती फ़ैसले और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन की तरफ ले जाना, थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मुखलिसीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ आप चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, शराकत दारी के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग अपने आप को महफूज भी रख सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 16 अक्टूबर से लेकर इख्तिताम माह तक मरीख की 8वें बैतुल खौफ में मौजूदगी, बुज़ुर्गों से मुशावरत और इन अय्याम में वक्फा से सदक़ात देने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं और बहुत सारी ऐसी उलझनों से जो कि बला बजा आपके वक्त के ज़िया का सबब बने उनसे भी महफूज रह सकेंगे। 18-19 अक्टूबर को मरीख शम्स तसलीस होने की वजह से खुद एतमादी बढ़ेगी। आप लोग वो चीज़ें जो कि शायद नहीं कर पा रहे थे, सुस्त रवि की वजह से बिला वजह चीज़ें डिले हो रही थी, आप लोग करने की काबिलियत बनाए हुए नज़र आते हैं और इसके अलावा मसाइल का मुस्बत हल भी अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह निकाल सकेंगे।
19-20 अक्टूबर को मरीख ज़ोहरा तस्लीस होने की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक दूसरों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हुए नज़र आते हैं। आप लोग दूसरों के साथ किसी न किसी तौर पर अपने मसाइल को हल करने की तरफ राग़िब रहेंगे, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए नज़र आते हैं, दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल आप लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आता है और आपकी शख्सियत में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखार रहेगा। 25 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 12वें में लगने वाला जो शमसी ग्रहण है वो 12वें ख़राब घर में लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हासद किस्म के लोगों को निकाल भी सकता है, आपके एक्सपेंसेस को भी कम कर सकता है, लेकिन फिर भी ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग वक्तन फ़वक्तन रूहानी बरकत के तौर के पर सदका और इसके अलावा ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज कसूफ लाजमी तौर के पर अदा करें। इस पूरे महीने की बनने वाली आखिरी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए 27-28 अक्टूबर को होगी, जब मरीख अतारत तस्लीस करेगा। मरीख अतारत तस्लीस यानी कि ट्राइन की नज़र बनने की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक काम के मेयार में और स्पीड में तेज़ी लेके आते हुए नज़र आते हैं, तो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें अंजाम देना इस महीने का इख्तिताम आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत बनाएगा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस बुर्ज कौस। आप लोगों को हाकिम सदरा मुश्तरी तमाम माह बदस्तूर चौथे वतदुल अर्ज में हालत रुज्जत में रहते हुए 10वें वतल सबा में मौजूद शम्स अतारत ज़ोहरा से 7वें नाजिर होने के सबब खानगी, अज़दवाजी, कारोबारी, मुलाजमती ऐसी ख्वाहिशात जो कि दूसरों से मुंसलिक हैं, काफ़ी हद तक इन अमूर के ऊपर आप ख़ास तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके बिलखुसूस घर की शिफ्टिंग का हो या तमीर का इरादा हो या फिर सवारी की तब्दीली की ख्वाहिश हो, इस एतबार से भी नेक वक्त का तयन लाजमी तौर के ऊपर करवा लें ताकि किसी भी तौर पे आप लोगों को परेशानी ना रह सके। 1 और 2 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा मुकाबला होने की वजह से हालात का गलत तयन हो सकता है, कुछ गलत डायरेक्शन या गलत इक़दामात या गलत रुझानात या फिर गलत फ़ैसले हो सकते हैं। कोशिश करें कि मुखलिसीन का तावन आप लोग इस पूरे महीने में अपने साथ रखें ताकि किसी भी तौर के ऊपर मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से आप लोग महफूज रह सकें और वक्त का ज़िया ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे महीने में 12-13 अक्टूबर को मुश्तरी अतारत मुकाबला होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात अंजाम दे सकते हैं जिससे आप लोगों को बाद में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो हर दो कैफियत में आप लोगों को दूसरों की मशावरत या दूसरों के बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ मिल के मामलात को चलें। इसके अलावा 25 अक्टूबर को 11वें में लगने वाला जो आपका शमसी ग्रहण है, हल्का अहबाब के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, रिलाय करना, कुछ ख्वाहिशात के लिए वक्त और पैसे को सर्व करना आपके लिए बाद में परेशान कौन हो सकता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, रोके रखें और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी नहीं रखें ताकि बिला वजह की मायूसी ना हो। और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए जहाँ पे सदका आप लोग लाजमी देंगे, वहीं पे 2 रकत नमाज कसूफ भी ज़रूर अदा करेंगे। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न से आप लोगों को हाकिम सतारा ज़ुहल तमाम माह बदस्तूर ताले में हालत रुज्जत में रहते हुए 24 अक्टूबर से मुस्तकीम होगा, तो ज़हनी तौर के ऊपर आप लोगों को वसत मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप लोग काफ़ी हद तक खुद एतमाद नज़र आते हैं। ये पूरा महीना आपकी ज़िंदगी में खुशबख्तियों की तरफ जाते हुए नज़र आएगा और अगले महीने से मामलात ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत होंगी, सोचने समझने की सलाहियत निखरती हुई नज़र आती है, जबकि दूसरों के मनफी रवैयों को आप लोग रद्द करते हुए सिर्फ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे जो कि ज़हनी सुकून दिला सकेगा। 12-13 अक्टूबर को ज़ुहल शम्स तस्लीस बनने की वजह से सब्र और इस्तिकामत आएगा, ज़िंदगी में ठहराव आ सकेगा, सोच में मेयार आ सकेगा, वसत आती हुई नज़र आती है, जिसके एतबार से आप लोग बहुत सारी ज़िंदगी की रुकावटें, मसाइल, मुश्किलात को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। 14-15 अक्टूबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्लीस बनने की वजह से आप लोग जहाँ पे अपने फ़राइज़ के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे, वहीं पे आपकी तबीयत में दूसरों को हेल्प आउट करना, दूसरों के साथ अपने मामलात को बेहतर करना, तजदीद मरासम की तरफ बढ़ना और इस एतबार से कुछ चीज़ों में डिप्लोमेसी अपनाते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी से मसाइल को भी कम करने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगे। 23-24 अक्टूबर को ज़ुहल तारत तस्लीस बनने की वजह से सोच में पुख्तगी, मेयार, नए आइडियाज़, तख्लीक़ात, काम के मेयार को बेहतर बनाना, नए आइडियाज़ को रिफॉर्म्स करना या फिर अपना पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर करना, इजहार सोच का बड़ी खूबसूरती के साथ करते हुए नजर आते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। 25 अक्टूबर को आपके ज़ायचे में 10वें में लगने वाला शमसी ग्रहण करियर के अतबार से, करियर से जुड़ी हुई इक़दामात के लिहाज से या फिर आपकी रिस्पेक्ट के अतबार से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उस मनफी असरात को कंट्रोल करने के लिए हस्ब तौफीक सदका और 2 रकत नमाज कसूफ लाजमी अदा करें ताकि ये पूरा महीना आपके लिए खुशबख्त ही रह सके। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज दलम।
एक्वेरियंस आप लोगों का हाकिम सरा ज़ुहल तमाम माह बदस्तूर 12वें रहते हुए हालत रजत में रहने के बाद 24 अक्टूबर से इस्तिकामत पजीर होगा तो कुछ नए पहलू ज़िंदगी में उजागर होते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरों के साथ बिला वजह की खामखा की परेशानियाँ, उलझने, मसाइल, मुश्किलात कम हो जाएंगे। वहम वसवसों का खात्मा होगा, खुद एतमादी में बढ़ावा होगा। 12-13 अक्टूबर को ज़ुहल शम्स तस्लीस होने की वजह से सब्र इस्तिकामत, तहम्मुल, मिजाजी और दरपेश मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों में साबित कदम रहते हुए नजर आते हैं, जिस एतबार से आप लोगों की काबिलियत भी बढ़ जाएगी, दूसरे अफराद आपसे मरूब भी होंगे और आप लोग अपनी ज़िंदगी में मसाइल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी बेहतर होंगे। 12-13 अक्टूबर को ज़ुहल शम्स तस्लीस बनने की वजह से इज़्ज़त, रुतबा, तबीयत में आला ज़रफ़ी, नज़्म व ज़ब्त और कायदाना सलाहियत निखरती हुई नजर आएगी। 14-15 अक्टूबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्लीस होने की वजह से आपके अल्फाज में मिठास, मोहब्बत, दूसरों के साथ अपने रवाबत को खूबसूरत रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देना, दरगुजर कर देना, और इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों के लिए खूबसूरती का महीना है, पॉजिटिविटी एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का है, चीज़ों को लीड करने का महीना है और अपने काम के मेयार में खूबसूरती लेके आने के पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। इसके अलावा 13-14 अक्टूबर को ज़ुहल ज़ोहरा तस्लीस ही के सबब आप अपनी ज़िंदगी में कोई तजदीद भी करते हुए नजर आते हैं रिश्तों के साथ। 23 और 24 अक्टूबर को ज़ुहल तारत तस्लीस होने की वजह से सोच के निखार में बेहतरी आएगी, सोच के मेयार में बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। आप लोग जो चीज़ें अब तक कह नहीं पा रहे थे या सिर्फ आपके जहन में चल रही थी, आप कहना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। लेकिन 25 अक्टूबर को लगने वाला आप लोगों के जायचे में 9वें में शमसी ग्रहण आप लोगों के लिए थोड़ा सा रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आप लोग इस मनफी रुझान से महफूज हो सकते हैं सदका की रेमेडी करके और 2 रकत नमाज़ कसूफ अदा करके। लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास पाइसेस बुर्ज हूत। आप लोग का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह बदस्तूर ताले में हालत रजत में होने के सबब 7वें शमसी ज़ोहरा शम्स ज़ोहरा अतारत से नाजिल रहेगा तो खानगी, ख़ानदानी, अज़दवाजी और शराकती मामलात बहुत हाईलाइटेड होंगे। आप लोगों के अलावा सफ़र भी अगर कर रहे हैं तो दौरान सफ़र आप लोगों को थोड़ा सा अजनबी अफराद से मोहतात रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके सोच या तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ाहरी हासदीन से भी हदबंदी लाजमी तौर के ऊपर रखें। बहुत ज़्यादा दूसरों को अपनी ज़िंदगी में, अपने सोच में, अपने जहन में इंटरफेयर करने की इजाज़त ना दें। सुने ज़रूर लेकिन करें वही जो कि आपका दिल कह रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपने आइडियाज़ ख़ुद से रिफॉर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा अज़दवाजी तौर के ऊपर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की ज़रूरत रहेगी। ये पूरा महीना ऑन एंड ऑफ अपने रिलेशनशिप को ज़रूर टाइम दें ताकि मामलात ज़िंदगी खूबसूरत रह सके। 12-13 अक्टूबर को मुश्तरी अदालत मुकाबला होने की वजह से कहीं पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज़ करेगा, तो अपनी सोच की अक्कासी अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर करें और उनकी मुशावरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इसके अलावा देखा जाए तो 25 अक्टूबर को 8वें में शमसी ग्रहण लगना, क्योंकि 8वें घर में है कमज़ोर ग्रहण, कमज़ोर घर में ग्रहण लग रहा है तो आपकी ज़िंदगी में बेसिकली बीमारियों को दूर करेगा, आपके विरासती कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मसाइल को हल करने में मावनत होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण है, मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग हस्बे तौफीक सदका ज़रूर दें और इसके अलावा 2 रकत नमाज कसूफ ज़रूर अदा करें ताकि ये पूरे महीने की जो पॉजिटिविटी है वो आपके साथ रह सके और मनफी रुझानात आप लोग अवॉइड कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पर्सनली तौर के ऊपर रहनुमाई ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर लाहौर, कराची, रावलपिंडी में मिल भी सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।